Swatan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. Send the evil Asura, Mook, after them in the form of a boar, because he'll be really easy prey, because he'll be meditating really hard, trying to get this weapon from Shiva, and then we'll get him that way, and that way we'll win the war. And then we'll see what happens after that. This is, of course, the Kala Troupe, which is Edmonton's first Hindi language theater troupe. And it's about half an hour long, something like that. It's maybe a little bit less than that. I saw it the other night. It was quite compelling, actually. Passed since the Pandavas were exiled in the forest, but the storm clouds of Kurukshetra has not yet calmed. Indraprastha, once a beacon of dharma and prosperity, is now crushed under the Kurukshetra ruthless rule. But how did it all come to this? Why Pandavas are in exile? Well, the story begins with a rigged gamble. Invited by their cousin Duryodhan and Shakuni, Pandavas were deceived in a rigged gamble masterminded by Shakuni. Pandavas have lost everything, their kingdom, their wealth, even their dignity. In the final blow, Draupadi, their queen, was humiliated before the royal court. After losing everything, the Pandavas were forced for a 12-year exile. For the last year is Ajñatavas, a period of living in disguise, where if discovered, they would have to repeat their exile again. Now, the exile nears its end, but justice remains undone. Let us now go to the stillness of the forest, where Pandavas were enduring suffering, but with patience. Draupadi was very furious, and Bhim comes with vengeance. Finally, Vedvyas arrives, but before that, a spy comes, the Vanechar. Draupadi, burned with the memory of injustice, and a spy arrives with the great news that Duryodhan has seized Indraprastha and prepares for war. Draupadi demands justice. Bhim calls for vengeance. Then comes the Vedvyas, declaring that war is certain, but victory needs divine weapons. Arjun is the chosen one, and his journey of dharma waits. Victory needs divine weapons, but his journey is also for the divine power. महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। आओ वनेचर, बताओ क्या समाचार लाए हो हमारे प्रिय इंद्रप्रस्थ से? महाराज, दुर्योधन ने पूरे इंद्रप्रस्थ पर अधिकार जमा लिया है और प्रजा को अपनी तरफ करने के लिए झूठी और चारों ओर
बस यही प्रचार कर रहा है कि पांडव स्वार्थी थे, अभिमानी थे, और कौरव सच्चे धर्म के मार्गी थे महाराज, और प्रजा के साथ ये संबंधियों जैसा व्यवहार कर रहा है महाराज। परंतु यदि कोई उनके विपरीत जाता है या फिर उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो फिर उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है महाराज। हम अभी दुर्योधन से और अपेक्षा भी क्या रख सकते हैं? कूटनीति, कुकर्म, ये तो उसके अंतरंग है। परंतु महाराज वह सिर्फ छवि निर्माण नहीं कर रहा, वह तो कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। A spy Vanichar arrived and informed Yudhishthir that Duryodhan has seized Indraprastha and manipulating public opinion against the Pandavas and is secretly preparing for a war with Shakuni. Then Draupadi, the wife of 5 Pandav brothers, arrives. और आप अभी भी मौन है धर्मराज? क्या धर्म इतना दुर्बल है कि अन्याय के सामने चुप रहना सिखाता है? पांचाली, धर्म सब्र की परीक्षा लेता है, अतः युद्ध सदैव अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो क्या पासे के खेल में आपका अंतिम विकल्प मैं थी? जब मुझे भरी सभा में बाल खींचकर घसीटकर लाया गया तो आपका चुप रहना आपके धर्म की परीक्षा थी। मेरा स्वास्थ्य हनन किया गया, आप चुप रहे। मैंने राजा धृतराज से भीख मांगकर हमारी हारी हुई संपत्ति पर पुनः अधिकार पाया, परंतु आप तो शकुनी के बुलाने पर पासे का खेल खेलने वहां वापस चले गए और आज उसका अंजाम हमारा यह वनवास है। जयद्रथ मुझे अपहरण करके ले जाता है, उसे सजा तक देना नहीं हुआ आपसे। भीम के कलेजे की आग को और अर्जुन के बल को कब तक आप अपने धर्म की शीतलहर से बुझाते रहेंगे? आप तो सम्राट हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप सारे पराक्रमी पांडवों के राजा हैं। आपका दिल नहीं जलता, आपको क्रोध नहीं आता। अगर ऐसा ही है तो त्याग दीजिए अपना यह धनुष। आज भी जब वो कौरव हमसे हमारा राज्य हत्या रहे हैं तो आप चुप हैं। ये कायरता है, धर्म नहीं। Draupadi storms in, burning with rage. She confronts Yudhishthir. Is dharma silence before injustice? Her words echo past humiliations and betrayals, exile and unanswered crimes. She questions his restraint, his kingship, and his very dharma. And in that moment, silence becomes unbearable. द्रौपदी ठीक कहती है भैया, आपने हमेशा संयम दिखाया, पर अब समय है न्याय की पुकार का। आप तो चारों विद्याओं में निपुण हैं, फिर भी आपकी बुद्धि नष्ट क्यों होते जा रही है? हम 5 भाई दुर्योधन और उन कौरवों का नाश करने में सक्षम हैं। फिर आपको किस बात का डर है? आपको क्या लगता है कि 13 वर्ष बाद वह दुर्योधन आसानी से हमें हमारी राजश्री वापस कर देगा? क्या आपको अपने भाइयों पर विश्वास नहीं? आपके चुप रहने से वह दुर्योधन हमारे राज्य का आनंद ले रहा है। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता जब हमारी अस्मिता को कुचला जा रहा हो। शांत रहो भीम, शांत। कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार
कर लेना चाहिए। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्रोध तो शक्ति को नष्ट कर देता है, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो। भीम, शांत करो। अभी युद्ध का समय नहीं हुआ। Bhim challenges Yudhishthir's restraint, urging action, but Yudhishthir insists on wisdom over rage. At that moment, a sage, Vedvyas, arrives, and all rise in reverence as Yudhishthir offers him his seat. शांत हो जाओ पुत्रों, शांत हो जाओ। हमें पूर्ण ज्ञात है कौरवों ने जो भी तुम्हारे साथ किया वह घोर अन्याय और अधर्म है। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान अति निंदनीय और असहनीय कर्म है। चौसर के खेल को ईर्ष्या की भावना से खेलना उनकी मंशा की प्रस्तुति करता है। अब यह युद्ध अटल है, अब यह युद्ध नहीं रुक सकता है। और अब यह केवल भूमि या प्रतिशोध का युद्ध नहीं, अब यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। युद्ध की तैयारी कैसे करें? आप ही हमारा मार्गदर्शन। तुम्हें वनवास के इस समय को योजना बनाने और शस्त्र एकत्रित करने में लगाना होगा युधिष्ठिर। और संपूर्ण दिव्यस्त्रों को एकत्रित कर सकता है अर्जुन, क्योंकि वह इंद्र का पुत्र है। द्रौपदी, आप अर्जुन को ले आइए। परंतु गुरुवर, कोई मनुष्य जीवित इंद्रलोक कैसे जा सकता है? इंद्र देवों के राजा हैं युधिष्ठिर, और एक पिता की भांति वह अपने पुत्र की प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अर्जुन को इस कार्य के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाना होगा। आपके पथ प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। Vedvyas proclaims the coming war is a battle of dharma, urging divine preparation by Pandavas. He instructs that only Arjun can obtain celestial weapons through penance at Indrakil mountain. On request of Yudhishthir, Draupadi calls Arjun. Arjun is ready to obey. आओ पुत्र अर्जुन। अर्जुन, तुम इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां देवराज इंद्र की तपस्या करो और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। परंतु स्मरण रखना अर्जुन, अपने अस्त्र और शस्त्र अपने संग रखना। कुछ भी अनुचित हो सकता है। प्रत्येक अवांछित परिस्थिति के लिए सदैव तत्पर रहना। अर्जुन, ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरुवर के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। देवराज इंद्र की तपस्या के लिए स्मरण करो। जैसा आदेश भैया, मैं इंद्रकील पर्वत की ओर प्रस्थान करता हूँ। आयुष्मान भव। Yudhishthir commands Arjun to accept this duty, Yashasvi and bhava. Arjun obeys. Just then, as Arjun departs, he pauses
His eyes meet with Draupadi's eyes, burning with sorrow and resolution. She reminds him of their lost honor. He vows to return with divine power and restore families and Draupadi's dignity. अब तो बस आप ही हमारे खोए हुए साम्राज्य और हमारे सम्मान को वापस दिला सकते हैं। हमें याद करके वियोग न करना, तपस्या करना और मेरी यह प्रतिज्ञा हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ द्रौपदी कि तुम्हारे साथ हुए एक एक अपमान का, भैया युधिष्ठिर के साथ हुए छल का, मैं सबका प्रतिशोध लूंगा। Arjun sets off toward the sacred mountain Indrakil. Now, we shift our focus to Indraprasth. Inside the grand royal court of Indraprasth, Duryodhan and Shakuni are discussing strategies and preparations for the inevitable war. Suddenly, near Duryodhan, again a messenger arrives with an alarming news. Arjun is deep in penance, seeking divine weapons, and he aims to obtain the deadliest of them all. भांजे, क्या समाचार लाया है ये गुप्तचर पांडवों के यहाँ से? ये कहता है अर्जुन दिव्यास्त्र पाने की जुगत में इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की ओर जा रहा है। यदि उसे यह दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ तो हमारी हार निश्चित है मामा शकुनी। Since childhood, Duryodhan's jealousy and Shakuni's hatred have fueled endless schemes against the Pandavas. Even in exile, their fear persists, for they know the Pandavas' unwavering righteousness will one day destroy the darkness they uphold. भांजे दुर्योधन, यही तो समय है जब बुद्धि और छल से हम धर्म के पथ पर चलने वालों को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। अर्जुन तपस्या में लीन है, रक्षक विहीन, ध्यान में डूबा। ऐसा समय शत्रु के वध के लिए स्वर्णिम अवसर होता है। पर कौन करेगा ये कार्य? कौन है जो अर्जुन को उसके तप में क्षति पहुंचा सके? मूक, वह असुर, वह अपना शिकार नहीं छोड़ता।
ना ही किसी के वश में आता है। वह केवल आदेश मानता है और संहार करता है। Upon hearing this, Duryodhan's face hardens with anxiety, while a cunning smile curls across Shakuni's lips. Without delay, they begin to hatch a dark conspiracy. The Kuru's covert scheme begins to take shape as the darkness deepens and the atmosphere grows more sinister. A mute asur, Muk, a frightening entity born of darkness and stillness, appears at Duryodhan's command. मूक, जाओ उस इंद्रकील पर्वत की ओर जहां अर्जुन तपस्या कर रहा है। जब वह गहन ध्यान में लीन हो तो आघात कर उसका अंत कर देना। ध्यान रहे, अर्जुन को किसी भी रूप में जीवित वापस न लौटने देना। यदि वह अस्त्र लेके लौटा तो कुरुवंश का अंत निश्चित है। ऐसा कार्य तुम्हारे जैसा असुर ही कर सकता है। कोई दया नहीं। Duryodhan's eyes, gleaming with cruel satisfaction, commands the demon to strike Arjun down during his deepest penance. Shakuni, a venomous whisperer, reinforces the command with chilling clarity. If Arjun returns with divine weapons, their fate is sealed. Without a word, the Asur nods and vanishes into the night, a shadow headed toward Indrakil to smoother destiny in its cradle. Let us now go to the sacred Indrakil mountain, where Arjun is meditating deeply, praying to Lord Indra for divine weapons. ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। Meanwhile, in Indralok, a Brahmin visits Indra and tells him about a sage on Indrakil. This sage is not only meditating but also practicing with weapons, which is scaring the birds, animals, and people nearby. Indra realizes this sage is his own son, Arjun. Indra decides that he himself will go to Indrakil mountain and ask the reason behind Arjun's deep penance and grant him a suitable boon and advice. पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा और शालीनता से प्रसन्न हुआ। तुमने संयम की परीक्षा में विजय प्राप्त की है। कहो पुत्र, ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हो? देवेंद्र, मैं कृतज्ञ हूं। शस्त्र से पहले संयम का अभ्यास क्षत्रिय की पहली परीक्षा होती है और आपने यह अवसर मुझे दिया। देवराज, आप तो जानते ही हैं कि कौरव दशकों से कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं। वे हम पांडवों पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। ऋषि वेदव्यास ने मेरा मार्गदर्शन कर मुझे इंद्रकील पर्वत की ओर भेजा। आपकी तपस्या कर दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने अथवा तो उसका प्रशिक्षण लेने के लिए। Indra appears before Arjun, pleased with his unwavering penance and discipline, and asks the reason for his tapasya. Arjun humbly responds that before wielding weapons, a warrior must master restraint.
and he now seeks divine weapons to protect Dharma from the rising threats of Adharma. पुत्र अर्जुन, मुझे ज्ञात है पांडवों की दुर्दशा, किंतु यह भी सत्य है कि स्वर्ग में बहुत से अस्त्र और शस्त्र उपलब्ध हैं और वह मेरे संरक्षण में है, परंतु महादेव शिव की अनुमति के बिना उसका कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता। देवराज, मेरे बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने भाइयों के पास जाना उनकी निर्बलता का कारण बन सकता है और ये हम सबका मनोबल चूर चूर कर देगा। पुत्र अर्जुन, अब समय है महादेव शिव को प्रसन्न करो, उनसे पशुपतास्त्र अस्त्र की याचना करो। तुम्हारा अगला कदम अब तब से भी कठिन होगा। महादेव शिव स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे और ज्ञात रहे वह किसी भी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। Indra reveals to Arjun that divine weapons are powerless without Lord Shiv's blessing. He instructs Arjun to worship Shiv and seek the Pashupatastra, warning that Shiv may come in disguise to test him. With his guidance delivered, Indra departs, leaving Arjun to prepare for the next stage of his spiritual journey, a journey that now turned towards the supreme deity of destruction and grace, Lord Shiv. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। As Arjun meditates upon Lord Shiv with unwavering focus, a fierce wild boar, a demon in disguise sent by Duryodhan and Shakuni, charges in to end his life and his penance. प्रभु रुद्र रक्षा। लगता है कोई खूंखार राक्षस मेरी ओर चला आ रहा है। अवश्य इसी किसी शत्रु ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है। ऋषि वेदव्यास ने कहा था कि अवश्य शत्रु मेरी परीक्षा भंग करने और मेरे प्राण हरने आएंगे। आत्मरक्षण हेतु मुझे युद्ध के लिए सचेत होना होगा। अब चाहे वो राक्षस हो या वरा, आ तो मुझे मारने के लिए ही रहा है।
Sensing the danger on Arjun's soul, Lord Shiv decides to test the warrior's strength and devotion. He takes the form of Kirat, which means a tribal hunter, and appears in that disguise. But Arjun does not recognize him. आप देखने में तो बहुत तेजस्वी दिखाई देते हैं, किसी अच्छे वंश के प्रतीक होते हैं, परंतु आप इस शुक्र का वध करने वाले तीर को क्यों चुरा रहे हैं? ये बाण मेरा है, ये शुक्र मैंने मारा है। चलिए, गलती तो किसी से भी हो जाती है, परंतु आप केवल ये शुक्र और ये तीर मुझे वापस कर दीजिए। अच्छा, किसी क्षत्रिय के शिकार को धोखे से अपना शिकार कहना बड़े निर्लजता की बात होती है। निर्लज्जता? हाँ? मुझे तो लगा आप मेरे आभारी होंगे, आपके प्राण रक्षा करने और इस राक्षस का वध करने के लिए। अब एक आदिवासी मेरा रक्षण करेगा? सुनो किरात, इस शुक्र को मैंने मारा है। देखो तपस्वी, तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारा तीर इसको घात भी पहुंचा सकता होगा। वो तो कहीं हवा में लुप्त हो क्या होगा। ओ, इतना अभिमान एक आदिवासी को अपनी युद्ध कला पे? सावधान, मुझे युद्ध करने पे विवश ना करो। अवश्य भावी है किरातपति। A fierce duel erupts. Weapon clashes. Arrows are unleashed. The battle rages in its all fury. मेरे पास सीमित अस्त्र थे, आपने मेरे सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए। आओ, मुझसे द्वंद्व करो। तुम बहुत पराक्रमी हो, जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं भी तुमसे निशस्त्र लड़ूंगा, ये देख लो। आओ। With every weapon lost, Arjun's fury boils over. Breathing heavily, he challenges the hunter to hand combat. The trial of Arjun has truly begun, until finally Lord Shiv reveals his divine form. आप कौन हैं? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मेरा हृदय कहता है आप मेरे भोले शंकर हैं। प्रभु, कृपया अपने दर्शन दीजिए। अर्जुन,
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तथास्तु। प्रभु, आपने मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे अपने दर्शन दिए। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। महादेव, मुझे पशुपतास्त्र प्रदान करें। तुम्हारा युद्ध जन कल्याण के लिए है, तुम्हारा युद्ध धर्म युद्ध है। अर्जुन, दुख तो इस बात का होता है जब भाई को घात देने वाले भाई और स्त्री को अपमान करने वाले लोग इस दुनिया को दूषित कर रहे हैं। विष्णु रूप राम को पूजने वाले अपने भाई को आघात करते हैं। देवी अंबा को पूजने वाले स्त्री का अपमान करते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें पशुपतास्त्र दूंगा, परंतु ज्ञात रहे इसका उपयोग अगर किसी आपसी द्वेष या किसी निजी उपकरण के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये तुम्हारा और तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। Moved by Arjun's intense penance, Lord Shiv appeared and granted him the divine Pashupatast for the righteous war. He warned that the weapon must only be used to destroy evil. Any misuse driven by ego would lead to the wielder's own downfall. With reverence, Arjun accepted the blessing and stepped forward on his path of dharma. करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोकार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं The color truth, ladies and gentlemen, one more round of applause for the